Good morning, students. Today we are going to study the second lesson of the English book, first Golden Rays. The name of the lesson is On Violence. On Violence lesson is written by J. Krishna Murthy. J. Krishnamurti is a reputed writer and an educationist like Bertrand Russell. His mind was full of revolutionary ideas to change the old-fashioned world. There is a ting of ethical values in his writings. His contribution in the field of education is remarkable. Under Krishnamurti Foundation, many educational institutions are functioning which are devoted to build up a generation of brilliant students and academicians. जे कृष्णमूर्ति एक बड़े ही सम्मानित लेखक तथा शिक्षाविद हैं। बर्ट्रैंड रसेल की तरह इनका मस्तिष्क भी पुराने ढंग के विश्व को बदलने के क्रांतिकारी विचारों से परिपूर्ण था। इनके लेखन में नैतिक मूल्यों का समावेश है। शिक्षा के क्षेत्र में आपका उल्लेखनीय योगदान है। कृष्णमूर्ति फाउंडेशन के अंतर्गत अनेक शिक्षण संस्थान कार्य कर रहे हैं, जिन्हें इस तरह से विकसित किया गया है कि मेधावी विद्यार्थियों तथा शिक्षाविदों को एक नई पीढ़ी निर्मित की जा सके। नाउ we will consult about the text. In the present article, Krishnamurti points out the dangers of violence, which is a matter of global concern. इस वर्तमान लेख में कृष्णमूर्ति हिंसा के खतरों को इंगित करते हैं, जो कि वैश्विक चिंता का मुद्दा बन चुकी है। There is a need to develop a new culture inclusive of love, pity, patience and generosity। और यहाँ पर लेखक कहते हैं कि एक नए समाज को विकसित करने की आवश्यकता है, जिसमें प्रेम, दया, धैर्य तथा उदारता सम्मिलित हो। Education can be a good tool to curb violence। जी कृष्णमूर्ति के अनुसार हिंसा को नियंत्रित करने का एक अच्छा उपकरण शिक्षा हो सकती है। Now students, please open page number 21 of the lesson, part first. Now I am giving the model reading of the unit, part first. Listen it carefully and I will read for you a model reading. There is a great deal of violence in the world. There is physical violence and also inwardly violence. Physical violence is to kill another, to hurt other people consciously, deliberately or without thought, to say cruel things full of antagonism and hate, and inwardly, inside the skin, to dislike people, to hate people, to criticize people. Inwardly, we are always quarreling, battling not only with others but with ourselves. We want people to change. We want to force them to our way of thinking. In the world, as we grow up, we see a great deal of violence at the all level of human existence. The ultimate violence is war, the killing for ideas, for so-called religious principles, for nationalities, the killing to preserve a little piece of land.
to do that, man will kill, destroy, maim, and also be killed himself. There is enormous violence in the world. The rich wanting to keep people poor, and the poor wanting to get rich, and in the process, hating the rich. And you being caught in society are also going to contribute to this. There is violence between husband, wife, and children. There is violence, antagonism, hate, cruelty, ugly criticism, anger. All this is inherent in man, inherent in each human being. It is inherent in you, and education is supposed to help you to go beyond all that. Not merely to pass an examination and get a job, you have to be educated so that you become a really beautiful, healthy, sane, rational human being. Not a brutal man with a very clever brain who can argue and defend his brutality. You are going to face all this violence as you grow up. You will forget all that you have heard here and will be caught in the stream of society. You will become like the rest of the cruel, hard, bitter, angry, violent world, and you will not help to bring about a new society, a new world. But a new world is necessary, a new culture is necessary. The old culture is dead, buried, burnt, exploded, vaporized. You have to create a new culture. तो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपके सामने इसकी मॉडल रीडिंग लगाई. नाउ आई एम टेकिंग द न्यू वर्ड्स. लिसन केयरफुली एंड राइट इन योर नोटबुक. वायलेंस, एक्ट ऑफ सॉल्विंग फोर्स. एक्ट ऑफ सॉल्विंग फोर्स का मतलब है यहाँ पर हिंसा से लिया गया है कि किसी दबाव का प्रदर्शन करना, कॉन्शियसली, नॉविंगली, जानबूझकर, जानते हुए, चेतन अवस्था में, डेलिबरेटली भी जानबूझ करके ही यहाँ पर इसका भी अपन यही प्रयोग करेंगे. एंटागोनिज्म, एग्रेसिव अपोजिशन. एंटागोनिज्म, एग्रेसिव अपोजिशंस का मतलब यहाँ पर है प्रतिरोध या घृणा. अल्टीमेट, फाइनल, अंतिम. मेम, कॉज इंजरी, यानी किसी दुर्घटना के कारण, चोट लगने के कारण अपंगता हो जाना. एनर्मस, इमेंस, वेरी लार्ज, यानी विशाल. द नेक्स्ट वर्ड इज इनहेरेंट, इनबॉर्न, नेचुरल, प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से जो हमारे अंदर जन्मजात गुण होते हैं. रेशनल, वाइज, चतुर, बुद्धिमान. ब्रूटल, वायलेंट एंड क्रूअल. brutal, violent and cruel. Vaporized, disappeared like a vapor. Generosity, kindness, उदारता. Crave out, डेवलप करना, विकास करना. Bliss, सुप्रीम जॉय, परमानंद. तो ब्रूटल का मतलब यहाँ पे अपन निर्दयी भी ले सकते हैं. वेपोराइज यानी भाप बन करके उड़ जाना. तो अपन ने ये इसके कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड देखे. अब आगे इस चैप्टर का अपन ट्रांसलेशन करते हैं, इसका हिंदी अनुवाद करते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू ट्रांसलेट दिस लेसन. द नेम ऑफ द लेसन इज ऑन वायलेंस, यानी हिंसा पर. देयर इज ए ग्रेट डील ऑफ वायलेंस इन द वर्ल्ड. हमारा राइटर कहता है कि संसार में यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में हिंसा है. देयर इज फिजिकल वायलेंस एंड आल्सो इनवर्ड वायलेंस. के संसार में शारीरिक हिंसा भी है और आंतरिक हिंसा भी है. दोनों प्रकार का यहाँ पर
जी कृष्णमूर्ति वर्णन करते हैं कि संसार में बहुत बड़ी मात्रा में हिंसा है, और हिंसा भी यहाँ पर दो प्रकार की बताई गई है। एक शारीरिक हिंसा जिसे फिजिकल वायलेंस कहते हैं, दूसरी इनवर्ड वायलेंस यानी आंतरिक हिंसा। फिजिकल वायलेंस इज टू किल अनदर, to hurt other people consciously, deliberately, or without thought, to say cruel things full of antagonism and hate तक। यहाँ पर अपने को जय कृष्णमूर्ति बताते हैं कि जो शारीरिक हिंसा है वह किस किस प्रकार से हमारे सामने आती है। सबसे पहले अपना राइटर कहता है फिजिकल वायलेंस इज टू किल अनदर। शारीरिक हिंसा का मतलब है कि अपन किसी दूसरे व्यक्ति को मार डालते हैं। टू हर्ट अदर पीपल कॉन्शियसली, डिलिबरेटली और विदाउट थॉट, किसी अन्य व्यक्ति को जानबूझकर अथवा सोच समझकर अथवा बिना सोचे समझे चोट पहुंचाना। फिर आगे बोलते हैं कि टू से क्रूल थिंग्स, हम उन्हें निर्दयतापूर्ण बातें कह देते हैं। फुल ऑफ एंटागोनिज्म एंड हेट, जो कि पूर्ण रूप से लोगों को घृणा से भरा हुआ और नफरत से भरा हुआ व्यक्ति बना देते हैं। एंड इनवर्डली, और आंतरिक रूप से इनसाइड द स्किन। इनसाइड द स्किन यदि इसके शब्दों को देखें तो मतलब है चमड़ी के नीचे या चमड़ी के अंदर, लेकिन यहाँ पर अपन ये नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर इसका मतलब है आंतरिक हिंसा, यानी अपने अंदर से, मन से, अपन हृदय से किस प्रकार से लोगों को डिस्क्राइब करते हैं। तो इनसाइड द स्किन, टू डिसलाइक पीपल, लोगों को नापसंद करना। टू हेट पीपल, लोगों से घृणा करना। टू क्रिटिसाइज पीपल, लोगों की आलोचना करना। इनवर्डली, आंतरिक रूप से, वी आर ऑलवेज क्वारलिंग, बैटलिंग नॉट ओनली विद अदर्स, कि आंतरिक रूप से हम हमेशा ही झगड़ा करते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, केवल अन्य लोगों के साथ ही नहीं बट विद आवर सेल्व्स, हम हमारे अंदर से भी हम अपने आप अपने मन में ही शांति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, हम झगड़ते रहते हैं। वी वांट पीपल टू चेंज, वी वांट टू फोर्स देम टू आवर वे ऑफ थिंकिंग, यानी हम यहाँ पर लोगों को बदलना चाहते हैं, अपनी विचारधारा के अनुसार हम उनको बाध्य करना चाहते हैं, यानी हम हमारी जो विचारधाराएं हैं वे उन लोगों पर थोपना चाहते हैं। और इस सेकंड पैराग्राफ में अपन पढ़ते हैं कि इन द वर्ल्ड एज वी ग्रो अप, इस संसार में जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वी सी ए ग्रेट डील ऑफ वायलेंस, हम मानव अस्तित्व के प्रत्येक स्तर पर बहुत अधिक हिंसा देखते हैं। In the world, as we grow up, we see a great deal of violence at the levels of human existence. यानी संसार में जब हम बड़े होते हैं तो हम मानव के अस्तित्व के प्रत्येक स्तर पर बहुत अधिक हिंसा देखते हैं। The ultimate violence is war. जो अंतिम हिंसा है, जो अंतिम हिंसा है वह युद्ध है। द किलिंग फॉर आइडियाज, अपने विचारों के लिए लोगों की हत्या करना, अपनी विचारधारा के लिए लोगों की हत्या करना। फॉर सो कॉल्ड रिलीजियस प्रिंसिपल्स, और तथाकथित जो ये धार्मिक सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के लिए लोगों की हत्या करना, हिंसा करना। फॉर नेशनलिटीज, राष्ट्रीयता के लिए।
द किलिंग टू प्रिजर्व ए लिटिल पीस ऑफ लैंड, और भूमि के एक छोटे से टुकड़े को अपने पास बनाए रखने के लिए, उस पर अपना स्वामित्व बनाए रखने के लिए लोगों की हत्या करना। टू डू दैट मैन विल किल, destroy, maim and also be killed himself। तो ऐसा करने के लिए मनुष्य हत्या करेगा, बुरी तरह घायल करेगा और स्वयं भी मारा जा सकता है। वह अपंग भी हो सकता है, वह अपने शारीरिक अंगों को खो सकता है, सब कुछ नष्ट कर सकता है और यहाँ तक कि अपने आप को भी मार सकता है। There is enormous violence in the world, the rich wanting to keep people poor and the poor wanting to get rich, and in the process hating the rich। इस संसार में बहुत बड़ी मात्रा में एक विशाल स्तर पर हिंसा है, और इस हिंसा में जो अमीर लोग हैं वह लोगों को गरीब देखना चाहते हैं, यानी जो धनी व्यक्ति हैं वे गरीब आदमियों को गरीब बनाए रखना चाहते हैं, और जो गरीब हैं द पुअर वांटिंग टू गेट रिच, और जो गरीब हैं वह अमीर बनना चाहते हैं। और इस प्रक्रिया में इन द प्रोसेस हेटिंग द रिच, और इस प्रक्रिया में धनी व्यक्तियों से लोग घृणा करने लग जाते हैं। एंड यू, और आप, बीइंग कॉट इन द सोसाइटी आर आल्सो गोइंग टू कंट्रीब्यूट दिस। यानी राइटर कहता है और आप जो भी इस समाज में रहते हैं, आप भी इस समाज की धारा में प्रवाहित हो जाते हैं, यानी समाज में उसके नियमों के अनुसार ही चलने लग जाते हैं और आप इसमें अपना योगदान प्रदान करते हैं। तीसरे पैराग्राफ में राइटर अपने को कुछ और अधिक समझाने का प्रयास कर रहा है कि देयर इज़ वायलेंस बिटवीन हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन, कि यहाँ पर जो हिंसा है वह पति, पत्नी और बच्चों के बीच में भी है, यानी पति, पत्नी और बच्चों के बीच में भी हिंसा होती है। देयर इज़ वायलेंस, एंटागोनिज्म, हेट, क्रूअल्टी, अगली क्रिटिसिज्म, एंगर, ऑल दिस इज इनहेरेंट इन मैन, इनहेरेंट इन ईच ह्यूमन बीइंग। तो अपना राइटर कहता है कि हिंसा, शत्रुता, घृणा, निर्दयता, भद्दी आलोचना, क्रोध, ये सब मनुष्य के अभिन्न अंग हैं और प्रत्येक मनुष्य के अभिन्न अंग हैं। इनहेरेंट का मतलब होता है जैसे अपने को पुरातन अपने माता पिता से जो अपने को गुण मिलते हैं, इनहेरेंट यहाँ पर बताया गया है कि ये स्वाभाविक है अपने अंदर, प्रत्येक व्यक्ति में हिंसा होती है। इट इज़ इनहेरेंट इन यू, और यह आपके अंदर भी है, आपके मन का भी यह एक अभिन्न हिस्सा है। इट इज़ इनहेरेंट इन यू एंड education is supposed to help you to go beyond all that, not merely to pass an examination and get a job। राइटर के अनुसार यह है कि ये माना जाता है कि शिक्षा आपको इन सब चीज़ों से दूर रखने में सहायता करती है। शिक्षा केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होना और काम प्राप्त करना नहीं है, यानी शिक्षा का उद्देश्य केवल यही नहीं है कि अपन किसी एग्जामिनेशन को फाइट कर लें और हम जॉब लग जाएं या नौकरी लग जाएं। यू हैव टू बी एजुकेटेड सो दैट यू बिकम ए रियली ब्यूटीफुल, हेल्दी, सेन, रेशनल ह्यूमन बीइंग, नॉट ए ब्रूटल मैन
with a very clever brain who can argue and defend his brutality. राइटर यहाँ कहता है कि आपको शिक्षित होना चाहिए, आपको शिक्षित होना पड़ेगा ताकि आप वास्तव में सुंदर, स्वस्थ मस्तिष्क के तथा विवेकशील व्यक्ति बनो, रैशनल ह्यूमन बीइंग बनो, विवेकशील व्यक्ति बनो, न कि एक पाश्विक, ब्रूटल तथा बहुत चालाक व्यक्ति जो तर्क कर सके और अपनी पाश्विकता को सही सिद्ध कर सके। यानी शिक्षा प्राप्त करके हम हमारी जो हिंसा की प्रवृत्ति है उसको तर्कों के द्वारा छिपाएं, ऐसी शिक्षा हमें प्राप्त नहीं करनी चाहिए, ऐसा अपना राइटर यहाँ बताता है। अब आगे कि यू आर गोइंग टू फेस ऑल दिस वायलेंस एज यू ग्रो अप, कि आप इस प्रकार की हिंसा का हमेशा सामना करते रहोगे जैसे जैसे आप इस समाज में जो जो आप बड़े होंगे। यू विल फॉरगेट ऑल दैट यू हैव हियर्ड हियर एंड विल बी कॉट इन द स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी। अपना राइटर यहाँ कहना चाहता है कि आप इस समाज में जो जो बड़े हो जाओगे इन सब हिंसाओं का आप सामना करोगे, लेकिन आप उन सब बातों को भूल जाओगे जो आपने यहाँ पढ़ी है और आप भी इस समाज की सामान्य धारा में फंस जाओगे। यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द क्रूल, हार्ड, बिटर, angry, violent world, and you will not help to bring about a new society, a new world. अपना राइटर दोबारा से अपने को ये बताता है कि हम समाज में जैसे जैसे बड़े होंगे, हमने यहाँ पर जो बातें सुनी है हमें उनको भूलना नहीं है। अगर हम उनको भूल जाएंगे, समाज की इस धारा में बह जाएंगे, तो हम निर्दयी, कठोर, कटु, क्रोधी, उग्र शेष संसार की भांति हो जाएंगे। यानी यहाँ पर कुछ वर्ड जो यहाँ पर दिए गए हैं जैसे क्रूल, हार्ड, बिटर, एंग्री, वायोलेंट वर्ल्ड एंड यू विल नॉट हेल्प टू ब्रिंग अबाउट ए न्यू सोसाइटी, ए न्यू वर्ल्ड। तो आप इस समाज को, इस संसार को बिल्कुल भी नया नहीं बना सकोगे, कि आप एक नया समाज, एक नए संसार की रचना नहीं कर सकोगे अगर आप इस समाज की धारा में बह जाओगे तो। बट ए न्यू वर्ल्ड इज नेसेसरी, लेकिन एक नए समाज की, एक नए संसार की आवश्यकता है। ए न्यू कल्चर इज नेसेसरी, एक नई संस्कृति की आवश्यकता है। द ओल्ड कल्चर इज डेड, बेरिड, ब्रंट, एक्सप्लोडेड, वेपोराइज्ड। राइटर कहता है कि जो पुरानी संस्कृति है ये डेड हो चुकी है, मृत हो चुकी है। बेरिड यानी दफना दी गई है, ब्रंट जला दी गई है, और एक्सप्लोडेड जिसको विस्फोट से उड़ा दिया गया है, वेपोराइज्ड जो कि यह पुरानी संस्कृति है यह भाप बनकर उड़ा दी गई है। यू हैव टू क्रिएट ए न्यू कल्चर, आपको ही इस समाज में एक नई संस्कृति उत्पन्न करनी है। तो अपन ने इसके पहले भाग की ट्रांसलेशन देखी। नाउ वी विल टेक द कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। इसके कुछ प्रश्न जो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, जो आपको नोटबुक में करने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज फिजिकल वायलेंस किल पीपल। आपको इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही चुनना है। सेकंड क्वेश्चन, वायलेंस इज इंडिविजुअल्स कम्स। इसका आंसर भी इन 4 ऑप्शन में है। इसके पश्चात तीसरा, वाइल शोइंग वायलेंस टू अदर्स मैन। इसका आंसर भी
आप ही को बताना है। मैं आपके आंसर मैच करूँगा, उसके बाद पता लगाऊंगा कि आपने इसमें से कितने आंसर सही दिए हैं। ए पर्सन विदाउट द सेंस ऑफ लव इज द स्टेट ऑफ ब्लिस इज ह्यूमन माइंड मे बी जनरेटेड बाय। इसके बाद इसके जो 20 से 30 शब्दों वाले जो क्वेश्चन आंसर हैं उनमें भी मैंने आपको एक दो प्रश्न यहाँ पर दिए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल वायलेंस? शारीरिक हिंसा के क्या लक्षण हैं? इसी का जो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनवर्ड वायलेंस? केवल 2 प्रश्न 20 से 30 वाले और 5 प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव टाइप दे रखे हैं, जिनमें से छांट करके आपको आंसर लिखने हैं। आप मुझे चैप्टर को देखते ही तुरंत अपना काम करना है और मुझे आंसर सेट करने हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।